Today we are diving into a place where beauty meets science. So today I've decided कि मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर फिजा से कराऊंगी and we are going to talk about all things beauty, all things skin, all things aesthetics. बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी हो रही होती हैं. हर पेशेंट की हिस्ट्री डिफरेंट होती है. हर चीज़ हर पेशेंट पे अप्लाई नहीं की जा सकती. जो चीज़ मैं खुद नहीं कर सकती पेशेंट से एक्सपेक्ट नहीं करती. प्रॉब्लम ये है कि हमारी अप्रोच टूवर्ड्स मेडिकेशन वो ठीक होनी चाहिए. मेडिकेशन या कोई भी चीज़ दुनिया में सही या गलत नहीं होती. जस्ट योर अप्रोच टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक टाइम. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर पैनाडोल भी आपको नकली भी मिलेगी. इंटरनेशनली तो आपके पास लिखा होता है ना कहाँ से अप्रूव है. बिल्कुल. जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन पे कहाँ लिखा हुआ है कि वो कहाँ से अप्रूव है. तो लोग खुद ही खरीद के खा रहे होते हैं. फार्मेसीज के ऊपर आपको केमिकल फॉर्मुलेशन, केमिकल पील भी फार्मासिस्ट आपको यहाँ पे जो कि फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, जो बेसिकली दुकानदार होते हैं, वो आपको बना के दे देते हैं एंड देन यू कैन डू इट एट होम. अगर आप रात को लैपटॉप पे स्क्रीन पे काम करते हो अंडर दीज लाइट्स, you are supposed to wear sunblock. तो रात को नहीं लगाती. You are supposed to wear sunblock because these lights are not good for us. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Speakeasy with Aisha Umar on 365 News. Today we are diving into a place where beauty meets science. Aesthetics की दुनिया में हम आज जाएंगे और मैं एक ऐसे एस्थेटिशियन और डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में आई हूँ जिनसे मेरी मुलाकात हुई कोई 8 months ago. So a very dear friend of mine and a colleague, Ifat Rahim, she told me about this dermatologist and she said, you know, I've achieved brilliant results and if you want to consult a dermatologist, this is Dr. Fiza and she comes from Dubai, UAE. She visits Pakistan every month. तो go to her and see how you feel. मैंने कहा okay. Now of course मैं अपना एक स्किन केयर ब्रांड भी क्रिएट कर चुकी हूँ काफ़ी 3-4 साल पहले and I am in well the beauty business and also I'm a public figure. तो मुझे अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है. I'm always in front of the camera. So for most of us, it's very important to regularly go to a certified dermatologist. तो मैं गई डॉक्टर फिजा के पास and you know I have been going on and off to dermatologists for the past 20 years. तो जब मैं डॉक्टर फिजा के पास आई और मैंने उनसे बातचीत की, I got to know her. I found her to be extremely knowledgeable and very different from the other dermatologists that I've been to. तो फिर मैंने उनकी एक सिग्नेचर ट्रीटमेंट की and when I saw the results, I was blown away. So today I've decided कि मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर फिजा से कराऊंगी and we are going to talk about all things beauty, all things skin, all things aesthetics. So let's go meet Dr. Fiza. How are you? I'm good. How are you? Good. Nice to have you. Thank you for giving us time. Most welcome. I know you are very, very busy. No, it's okay. It's my pleasure to have you. Like Yeah. तो आप कब तक हैं लाहौर में? Sorry, कराची में. I'm flying back tonight, inshallah. अच्छा. एक हफ्ता तो मेरा already लग ही जाता है because Karachi, Islamabad, Lahore, all these 3 cities all together. Yeah. So your base is in UAE. Yes. Right, Dubai. Full time working in Dubai. हाँ. Pakistan में part time like just as a visiting doctor. हाँ. I know that you come to Karachi like once a month. Sometimes twice a month also. Sometimes twice also. Wow. Because बहुत कम time होता है patients को complete नहीं कर पाते, then I have to come back again to attend all my patients. I really like your space. Thank you. क्योंकि जब लोग आके बाहर वेट करते हैं तो you know it's a very pleasant vibe. एक pond है बाहर जिसमें मछलियाँ हैं. Remember जब मैं first time आई थी तो दिन का वक्त था and मैं बाहर बैठ के अपना lunch खा रही थी and I was listening to music while waiting for you. So should we take a round? Please. Okay. Let me take you around. Yeah. Okay. Please. So एक दिन में आप कितने पेशेंट्स देख पाती हैं? So basically, I'm here only for a day or two. Usually, I start in the morning around 10ish. Sometime I finish around 2 a.m. Sometime 3, sometime 12. It all depends. How many procedures, how many consultations. So we try to manage, and I just love it. You love it. आपकी एक सिग्नेचर ट्रीटमेंट है
जो अगर आप डॉक्टर फिजा के सोशल अकाउंट्स पे भी जाएं तो उसके बारे में बहुत बात हो रही होती है. इट्स कॉल्ड डॉक्टर फिजा सिग्नेचर ट्रीटमेंट, FG सिग्नेचर ट्रीटमेंट. FG सिग्नेचर ट्रीटमेंट. अच्छा, उसी ट्रीटमेंट के बारे में मुझे इफ़त ने बताया. एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट ट्रीटमेंट्स डन. वो कोई रिजुविनेटिंग चीज़ कर लेते हैं. सो दैट ट्रीटमेंट आपने खुद क्रिएट की. Yes. And you've done about 8,000 of those. More than that. Wow. I want to know about that treatment. How is it different? So basically, it is a customized treatment, an enzyme-based peeling treatment. It's not a chemical peel. Yeah. So this is something which makes it different. Yeah. And we have almost 150 different types of signature treatment. And all those treatments I customize myself according to patient's skin condition, skin requirement. अच्छा, कस्टमाइज का क्या मतलब है कि आप खुद Formulation, compounding. कि वो फॉर्मुलेशन क्या बनेगी, फिर वो ट्रीटमेंट होगी. Yes. सो यू नॉट यूजिंग लाइक सेट लेजर्स एंड मशीन्स जो सबके ऊपर वो No. So basically, ये Are we going to sit here? Yes, please. Okay, great. Let's sit here. हाँ. So basically, when I started in Pakistan initially, बहुत सारे डॉक्टर्स को, बहुत सारे लोगों को लगा कि दैट आई एम डूइंग दिस ट्रीटमेंट, आई एम डूइंग दैट ट्रीटमेंट, बहुत सिग्नेचर ट्रीटमेंट की आई एम टॉकिंग अबाउट. सो आई ऑलवेज टोल्ड देम कि ठीक है, आप करके देख लो. बहुत सारे लोगों ने करके भी देखा एंड ट्राई भी किया. Like patients ने, डॉक्टर्स ने भी. डॉक्टर्स ने भी. Oh. So, but the results were not the same because, as I mentioned, that we customize the treatment. You customize Not the just treatment. treatment. We customize the home care products, home care maintenance products, and we try to manage patient accordingly. We just don't treat every patient because आपको ये requirement है तो आपको भी ये दे दिया, इनको भी ये दे दिया, मैंने भी खुद ये ले लिया. सब पेशेंट्स के लिए चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती. अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट है इसमें ओरल ट्रीटमेंट भी है या सिर्फ टॉपिकल है? आई डोंट बिलीव इन गिविंग ओरल ट्रीटमेंट. बिल्कुल. मैं यूजुअली ओरल ट्रीटमेंट्स देती नहीं, नॉट इवन जस्ट फॉर एक्ने. Really? बट पाकिस्तान में तो बहुत, और दुनिया भर में भी बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो, अब मैं वो नाम नहीं लूँगी उस ब्रांड का, बट वो इज़ द फर्स्ट थिंग दैट दे सब्सक्राइब टू पेशेंट्स फॉर एक्ने. फॉर एक्ने oral treatment. You can take the name Roaccutane. Roaccutane. So basically, Roaccutane is something which is amazing, but at the same time, it's quite dangerous also. बिल्कुल, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. हाई रिस्क साइड इफेक्ट्स उसके साथ आते हैं. बिल्कुल. प्रॉब्लम ये है कि हमारी अप्रोच टूवर्ड्स मेडिकेशन वो ठीक होनी चाहिए. मेडिकेशन या कोई भी चीज़ दुनिया में सही या गलत नहीं होती, जस्ट योर अप्रोच टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक थिंग. Roaccutane is good until unless it is required. मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली आई रियली फील बैड फॉर यंग पेशेंट, जो कि एक मेरे पास पेशेंट आए 14 years old for mild acne, nothing severe, no cystic acne, nothing. Trust me, अगर उन पेशेंट की जगह मैं खुद भी होती तो शायद मैं बॉदर भी नहीं करती. लेकिन कुछ पेशेंट को साइकोलॉजिकली वो चीज़ डिस्टर्ब करती है, दैट्स कंप्लीटली फाइन. बट फॉर दैट सॉर्ट ऑफ एक्ने, अनदर डॉक्टर, उन्होंने उन पेशेंट को ऑलरेडी 2 courses ऑफ Roaccutane ऑलरेडी हो चुके थे. Imagine 14 years old. Without any concerned and informed decision, आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो. If we talk about UK, for example, UK के अंदर without 3 consultant approval, your pharmacist cannot give you Roaccutane. In पाकिस्तान में Roaccutane का जो तो लोग खुद ही खरीद के खा रहे होते हैं. आप Roaccutane की बात करें, मुझे पेशेंट से डिफरेंट स्टोरीज पता चलती हैं. फार्मेसीज के ऊपर आपको केमिकल फॉर्मुलेशन, केमिकल पील भी फार्मासिस्ट आपको यहाँ पे जो कि फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, जो बेसिकली दुकानदार होते हैं, वो आपको बना के दे देते हैं, एंड देन यू कैन डू इट एट होम. सो Roaccutane हमारी पैनाडोल की तरह दी जाती है, प्लस antibiotics. Antibiotics is something which is not, if you keep taking antibiotics without any reason, without any requirement, आपकी immunity compromise होती है. Absolutely. So we have to be, as a doctor, I think we are responsible. We should take informed decision कि हम पेशेंट को वो ऐसी कोई मेडिकेशन है जिसका एडवर्स इफेक्ट हो. So yesterday a patient came to me, I think 32 years old. So उनको डॉक्टर ने 3 courses of Roaccutane कराए थे. एक कोर्स तो उनको 1 year तक उनका कंटिन्यू किया था, एंड आफ्टर 6 months दोबारा सेकेंड कोर्स कराया. बिल्कुल. एंड शी फाइनली स्टॉप टेकिंग इट बिकॉज शी वॉज फेसिंग eyesight issues.
उनकी आईसाइट कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो गई, उनको साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए. There are Can you imagine? many things that I want to say, but I won't. I'm really dying to say them. कि मैंने भी like I said, I went to dermatologist before you, of course, बड़े साल मुझे भी ये particular medication prescribe हुई थी. मैंने भी इसके courses किए because वो मेरी skin भी acne चली जाती थी जब मैं उस पर होती थी, and then it would come back later, right? So वो cure नहीं था. एंड उसके बहुत साइड इफेक्ट्स थे, और कुछ साइड इफेक्ट्स तो अब मैं फेस कर रही हूँ एट दिस टाइम. आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल खराब हो जाती है. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक आईसाइट. नो, एनीथिंग. लाइक माय आईसाइट हैज बिकम सो बैड, और मुझे लग रहा है कि ओह इट्स बिकॉज़ आई एम स्क्रॉलिंग ऑन द फोन टू मच. इवन इफ यू स्टडी अबाउट इट, यू विल फाइंड आउट कि सुसाइडल आपको वो हिस्ट्रीज भी मिलेंगी, बिकॉज देयर आर चांसेस कि आपकी डिप्रेशन इंक्रीज होने लगता है. बिकॉज ओवरऑल रूएक्टिन आपकी लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, आईसाइट, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स. So then why are dermatologists prescribing it so easily? Because we don't have, unfortunately, we don't have a lot of exposure, and वही वाली चीज़ें, because you are doing it and I'm supposed to do it. जिस तरह से लेजर आपको गली गली में 10 क्लिनिक पे सब पे लेजर्स मिलेंगे. वही लेजर चाइना के भी हैं, ओरिजिनल भी हैं किसी के पास, लेकिन सब ने लेजर्स करने, बिकॉज दूसरी क्लिनिक के पास पेशेंट आके बोलते हैं प्रेशर भी है. So patients का भी प्रेशर होता है कि उस क्लिनिक पे तो ये मशीन है, उधर ये है. उनके पास अब उसकी वजह से, अगर if someone can not even afford those machines, lasers machines are not cheap. अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो सेम मशीन, फॉर एग्जांपल हाइड्रा फेशियल, द ओरिजिनल वन इज फ्रॉम यूएस and the fake one is coming from China. But apparently you have hydrofacial. अब पेशेंट को क्या पता? पेशेंट ने साइकोलॉजिकली डिसाइड कर लिया है कि उनके पास हाइड्रोफेशियल की मशीन, उनके पास की लेजर है, रिगार्डलेस वो मशीन कहाँ से. So how did you decide कि मैंने इस पूरे मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं बनना? What was it? This is how I believe. This is my personality. This is how I am, and I don't take any decision without digging into it. I do have a team my team is dedicated specifically for research. We don't bring any treatment, any procedure in the clinic until we have done a lot of research. We have seen the case study. हमने नहीं की है. जो उनके pioneers हैं उनके साथ हमारी one-on-one interaction नहीं है. We do go in depth, even in Dubai, sitting in Dubai. There are a lot of. Yeah, I can say Alhamdulillah. And I'm proud to be a part of that DHA facility, because in DHA you cannot perform any procedure which is not approved by DHA. What is DHA? Dubai Health Authority. Oh, okay. Because in Pakistan DHA means something else. Yeah, we have other authorities because I work full time in Dubai, so I can talk about it. But in Dubai also you can find a lot of procedure and products जिसके अंदर Korean, Chinese और वो सब चीजें use होती हैं. But let's talk about this after the break. We're taking a little break. कहीं मत जाइएगा, बहुत ही informative conversation का हिस्सा बनने वाले हैं आप. Come right back. Welcome back to Speak Easy. इस एपिसोड में मेरी गेस्ट हैं डॉक्टर फिजा. She is my favorite dermatologist and esthetician. She might become your favorite too if you come to her. But बहुत knowledgeable हैं. She's visiting from the UAE. Just giving you guys a recap if you have just tuned in. हाँ, कहाँ थे हम? So basically, if we have a patient who's suffering from pigmentation, on the other hand we have a patient 18 years old, 14 years अच्छा, old. पिगमेंटेशन क्या होती है? So आपकी स्किन पे जो लेमन लैंग्वेज में, पाकिस्तानी ज़बान में हम अगर बात करें तो छाइयाँ जिसको कहा जाता है उसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं. पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन. यस, अनइवन स्किन टोन, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन. मेलास्मा है, सनस्पॉट है, फ्रेकल्स है, एंड देन मेनी मोर. आप पिगमेंटेशन आपको जब होती है तो वो क्रॉनिक कंडीशन है, विच मीन्स स्किन की क्रॉनिक कंडीशन. जब भी कोई दुनिया में कभी कोई क्रॉनिक बीमारियां जब होती हैं पेशेंट को, you cannot get rid of it permanently. Because uska, I always suggest my patient, and I always try my best to educate my patients, especially about their internal health. Yeah. If you are doing great internally, अगर आपकी hormones ठीक है, आपकी डाइट ठीक है, आपकी बॉडी में होने वाले चेंजेस आपकी लाइफ के ऊपर, obviously वो कहते हैं ना, when you're sick from inside comes on your face. Absolutely. आप बीमार लगने लगते हैं. बिल्कुल. जब आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हो, स्पेशली बीइंग अ फीमेल, वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस. हमारे मूड ख़राब हो, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, कुछ भी हुआ, हमारा इंस्टेंट हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं.
इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर इंटरनल बॉडी तो आपकी चीज़ें अपनी जगह पे सेटल डाउन होने शुरू हो जाती हैं एंड देन अलॉन्ग विद दैट आपकी जो भी कंडीशन या चीज़ें होती हैं, इवन जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो ज़्यादा अपना रिजल्ट दिखाने लगते हैं, उनकी ज़्यादा लाइफ लॉन्ग हो जाती है बेसिकली। सो एक पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की और एक दूसरे पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उन पेशेंट्स के ऊपर आप कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो पेशेंट किसी चीज़ से सफ़र नहीं कर रहा है। It's just a normal moisturizer. It's a good moisturizer. It's a good, they're providing good sunblock which is very important. Yeah. But on the other hand, अगर एक पेशेंट सफ़र कर रहा है पिगमेंटेशन से तो उसके ऊपर वो प्रोडक्ट्स काम नहीं करेंगे। प्रोडक्ट्स आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप बार बार एक ही चीज़ इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, ये प्रोडक्ट्स भी खरीद लिए वो प्रोडक्ट्स भी खरीद लिए, आपकी एक जो रूटीन है वो आपके डॉक्टर को डिसाइड करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आप टिकटॉक और आप दूसरी जो वीडियोस और चीज़ें सुनते हो और आप देखते हो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके, वो आपको नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया की वजह से कितने लोग इन्फ्लुएंस होके आपके पास आते हैं और कहते हैं भाई हमें तो ये वाला प्रोडक्ट चाहिए या हमें ये वाली ट्रीटमेंट चाहिए। Does that happen a lot? Yes, initially स्पेशली जब क्यूरीज आती थी, चीज़ें होती थी तो पेशेंट आके कहते थे आप हमें PRP कर दें, आप हमें माइक्रोनीडलिंग कर दें। This is something let me decide. PRP something I would not even suggest. Hardly मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अभी तक अपने कैरियर के अंदर हार्डली कोई PRP के प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होंगे बिकॉज आई नो कि PRP में हर पेशेंट का प्लाज्मा गोल्ड नहीं हो सकता। सो जस्ट बाय डूइंग आप PRP, अगर आप इस सोच के साथ कर रहे हो कि आपने एक सेशन कराया एंड देन यू विल बी एबल टू सी अमेजिंग रिजल्ट्स, सॉरी आपकी एक्सपेक्टेशंस ही रॉन्ग है, आपको बताया ही रॉन्ग गया है। आप PRP ये सारे प्रोसीजर्स कराते हो जस्ट टू इम्प्रूव योर स्किन क्वालिटी। समटाइम यस, अगर किसी का प्लाज्मा बहुत अच्छा है then you can expect कि पेशेंट की स्किन के रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, हेयर ग्रोथ भी हो सकती है। बट प्लाज्मा इन ले टर्म्स इज आपके ब्लड के अंदर जो देयर इज अ सब्सटेंस और उसमें PRP सेपरेट होती है। आपके रेड ब्लड का सेल अलग होते हैं, आपका जो फ्लूइड है वो डिफरेंट होता है, वो सेपरेट करते हैं, उसका प्लाज्मा निकलता है। जो प्लाज्मा होता है, अगर हम बात करें अगर 100 पेशेंट्स हैं तो उसमें से 2 या 3 पेशेंट्स का प्लाज्मा अच्छा होगा, बाकी पेशेंट्स का अच्छा नहीं होगा। एंड सेम पेशेंट्स में हम बार बार PRP करते रहेंगे 5 सेशन 10 सेशन, पेशेंट विल बी लाइक देयर इज नो रिजल्ट, they won't be able to see any result. And so many people talk about PRP. मैं जहाँ जाती हूँ PRP की बात होती है because वही वाली बात again because वो कर रहे हैं बालों के लिए PRP, स्किन के लिए and especially एक पेशेंट को अगर रिजल्ट आया है, PRP is something I would not say it's a bad procedure. It's just that we should not be dependent. Not for everybody. It's not for everyone. So we have to see and decide कौन सी ट्रीटमेंट किस पेशेंट के लिए उसके आइडियल कैंडिडेट है, वो उसके लिए सूटेबल है, उसकी जो हिस्ट्री है वो उसके साथ वी कैन थिंक अबाउट इट, वी कैन गो अबाउट इट। अगर पेशेंट आ रहा है कि उसकी ट्रीटमेंट्स नहीं करानी है, उसने एक सेशन में रिजल्ट चाहिए, तो PRP is not for you. Okay, we were actually on a different conversation और फिर हम deviate होके यहाँ आ गए, और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात आप मुझे बताने वाली थी कि जब आपने डिसाइड किया that you're not going to work with lasers and the regular way of treating patients for their skin, तो कोई controversy कुछ फेस किया था आपने? Yeah, unfortunately, yes. When I initially started in Pakistan, so कुछ grouping हुई थी, कुछ चीज़ें हुई थी, against me कि there is new doctor in town. We don't even know if she's a doctor or not. Yeah. Oh. So I mean, but आपकी qualification है to prove that. अच्छा, उन्होंने कहा चलो झूठ होगा. Without digging into the, without any information, digging into matter, just because they, उन्होंने grouping की थी, they decided कि they just wanted to leg pulling and all those things. Why? Is it because you are coming into their domain and you're a new person, or is it because you're a female doctor? Yes, because I'm a female doctor and I'm trying to bring some good change in the field. And alhamdulillah, in such a short span of time in Pakistan, I've made a alhamdulillah. So वो चीज़, this was something which was bothering a lot of people कि कौन सी डॉक्टर है, there was a chaos happening कि कौन सी डॉक्टर है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, everything. So and I was okay with that, and I was ready, even honestly speaking, but I was not prepared when
I got to know about it through my resources. This was not the first time, and I was not the only one. Oh. This was happening mostly with female doctors, especially. सिर्फ aestheticians या और भी dermatologists, Oh. aestheticians, plastic surgeon. They were trying to bring us down because we are being a female. It's not something they're comfortable with. So you're saying the male doctors grouped together and over time उन्होंने बहुत सारी Not just female- doctors. Not just doctors. Not just doctors. Okay. And उसमें सिर्फ मेल नहीं थे, लेकिन जो पहले डॉक्टर्स के साथ दूसरी फीमेल डॉक्टर्स के साथ हुआ था, ज़्यादातर उसमें मेल डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे. मेरे साथ जो हुआ था उसमें मेल फीमेल कुछ ग्रुपिंग थी. दे डिड इट एंड देन उनको बैकफायर खुद ही हो गया था उस चीज़ का. उनको खुद ही आंसर मिल गया था लीगली एंड प्रोफेशनली एज वेल. दे अपोलोजाइज्ड. They apologized publicly, and then it's fine for me because I know what's Works. coming my way and how to deal with it. But how does it feel when someone comes to you, a patient comes to you और उनका केस या उनके साथ कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है किसी और डॉक्टर के पास जाके? What do you do? Do you call up that doctor and get the history कि आपने ये क्या किया, or you just say कि अब मैं नए सिरे से शुरू करती हूँ? This is how I do it because if damage is done, it's done. We can't go back because patient को जब आप कंसल्टेशन कर रहे हो, this is how I do it. I don't do consultation for 5-10 minutes, just tell me and go away. I try to dig in as much as I can. And not just that, we try to analyze patient's skin history, not just related to skin. We try to dig in into everything. Patient की personal life में क्या चल रहा है, patient की मेडिकल हिस्ट्री बाकी रेलिवेंट है या नहीं है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या चीज़ है, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपका. राइट. सो कभी कोई ऐसी ट्रीटमेंट, आई मीन आप सिग्नेचर ट्रीटमेंट जो करते हैं, कभी ऐसे हुआ कि उसको किसी का कोई बैड एक्सपीरियंस हो एंड देन यू हैव हैड टू डील विद दैट या नहीं? कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक होती है. बहुत सालों से ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं. ऐसे पेशेंट हैं जो कि 10-10, 15-15 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनको 5% रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारे पास आके अगर उनको 50-80 भी मिलता है ना, they keep saying it is amazing but yeah this is not ये नहीं है उनकी एक्सपेक्टेशन. अच्छा बिकॉज हमने ये ट्रीटमेंट करा लिया, ऑल दिस ट्रीटमेंट इज अ वन टाइम ट्रीटमेंट. वन टाइम के बाद भी अगर उनको 2 या 3 साल बाद पिगमेंटेशन स्पेशली इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन, इट कैन रिलैप्स जब भी आपकी बॉडी हार्मोनली या इम्यूनिटी आपकी वीक होती है, आप अपने आप को एक्सपोज करते हो किसी चीज़ों के. अगर आपके 1 साल बाद 2 साल बाद पिगमेंटेशन वापस आ रही तो पेशेंट आके कहते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो इवन कंसल्टेशन में 1 घंटे के करने के बाद उनको ये समझाने की कोशिश करती हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू, बट वो आके कहते हैं कि वापस क्यों आ गए. अगर कोई कहता है तो आई ऑलवेज ट्राई टू, इट्स अ process. It's not just a process. You need to understand your pigmentation is now coming because now you're going through menopause. Now you're going through pregnancy. Maybe you're going through some hormonal changes. It's not coming because of pigmentation. अगर आपको 1 या 2 साल भी या a lot of patients, I have a lot of patients जिनके 5-6 साल तक उनको second session की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Let's come to the Gora complex. Okay. Of course. My favorite topic. ये हमारा एक colonial mindset सालों से चल रहा है और हमारे मुल्क में हमारी सोसाइटी में एक्चुअली एंड ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान मोस्टली लोग गोरा होना चाहते हैं. Yes. अच्छा, तो उसके लिए लोगों ने बहुत चीज़ें की. एक ग्लूटाथायोन एक चीज़ है जिसको ओरली लेना चाहिए, उसको अब्यूज़ भी किया बहुत सारे एस्थेटिशियंस ने. क्या ये माइंडसेट चेंज हो रहा है? चेंजेस आ रही हैं बट अभी भी हम बहुत पीछे हैं. हम बहुत पीछे हैं. स्टिल वी वांट टू बी फेयर एंड वाइट. जितना आप गोरे को और गोरा होना है, गोरे को और गोरा होना है. प्लीज़ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, अगर आपको गोरा होना है तो प्लीज़ मेरे पास मत आएगा बिकॉज आई डोंट परफॉर्म एनी प्रोसीजर विच इज़ रिलेटेड टू वाइटनिंग ट्रीटमेंट. आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑल दोज प्रोसीजर्स जिसके अंदर वाइटनिंग एजेंट ऐड किया जाता है. बिकॉज ग्लूटाथायोन इज समथिंग विच इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय FDA for whitening purpose. Glutathione is amazing for liver, but एक उसकी quantity होती है जो आपको whitening ही में convert कर सकती है. लेकिन अगर आप उसको abusive use में ले जाओगे, एक certain amount से ज़्यादा लोगे तो वो liver को failure और kidney failure में ले जाएगा. Oh my God. और हमारे यहाँ हर जगह सब जगह सिर्फ whitening treatments की बात होती है. Even पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए भी वाइटनिंग ट्रीटमेंट. तो अब हाउ डू यू डील विद दैट व्हेन पेशेंट्स कम टू यू एंड से मुझे तो गोरा होना है?
I refuse them Achha, nicely. you refuse I them. always refuse Okay. them nicely, and I try my best at least to educate them if they are willing to. But अगर उन्होंने obviously कराना है, they are. You know, Are you able to convince them sometimes? Yes, I do. And they understand. Yes, Okay. they do. तो यानी कि आप mindsets भी बदल रही हैं. बदल रहे हैं because approach बदल रही है. They wanted to understand. They wanted to educate themselves. आप जब पेशेंट के सामने दोनों चीजें रखते हो ना, पेशेंट को समझ आता है. समझ आता है. अगर आप समझाने की कोशिश करो. एज अ डॉक्टर आई फील रिस्पॉन्सिबल कि अगर पेशेंट मेरे पास आया है तो एटलीस्ट एक बात भी अगर उसको समझ आती तो माई वर्क इज डन. Amazing. Let's go on another little break and we will be right back. Welcome back to Speakeasy. मैं हूँ आयशा उमर. मेरी गेस्ट इस एपिसोड में है डॉक्टर फिजा. We are talking about many things including the Gora complex. We have spoken about lasers and being different. और जब आप लोगों से कुछ मुख्तलिफ करते हैं तो आपको बैकलैश भी आता है, ट्रोलिंग भी आती है, हेट भी मिलता है, बट यू हैव टू बी स्टैंडिंग योर ग्राउंड एंड इंटेग्रिटी के साथ काम करना है. और ये मैंने डॉक्टर फिजा में देखा फ्रॉम आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर राइट नाउ speaking to you and not any other dermatologist. अच्छा, so one very important thing I want to speak about is Botox and fillers. तो आपके rates for Botox and fillers ज़्यादा हैं as compared to other dermatologists. Why is that? Because unfortunately पाकिस्तान के अंदर पैनाडोल भी आपको नकली भी मिलेगी. इसी तरीके से जो बोटॉक्स और फिलर्स, बेसिकली बोटॉक्स जो है ना वो एक फॉर्मुलेशन है बोटुलिन टॉक्सिन के नाम से. It's a toxin. It's a toxin. Oh. Comes It's a from toxin. bacteria. Botox एक कंपनी है जो बोटॉक्स itself Allergan Botox, the purple box. Originally it's from US. बट उसकी डिफरेंट बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज होती हैं. जस्ट लाइक दैट, जैसे कोई भी चीज़ होती है आपको चाइना, रशिया, कोरियन उनकी रेप्लिका मिलती हैं. Just like Accutane. उसकी यहाँ लोकल कंपनीज इतना बना रही हैं और एक वो जो ओरिजिनल कंपनी है उसका नाम नहीं लेते हम, वो अलग है. इसी तरह से जो बोटॉक्स Allergan जो आ रहा है पाकिस्तान में वो मेजॉरिटी टर्की और चाइना से आ रहा है. उसकी जो बाइंग प्राइस है और फिर उसकी सेलिंग प्राइस उसके अकॉर्डिंगली सब जगह उसकी प्रोसीजर, उसकी क्वालिटी फर्क है. 100%. As I mentioned, that I don't use anything which is not coming from a direct source and authentic source and FDA approved. I use only like अगर कोई चीज़ US based है और FDA approved है तो वो वहीं से आएगी. अगर कोई चीज़ स्पेन की बनी है, कोई चीज़ जर्मनी की है, कोई चीज़ फ्रांस की है तो वहीं की होगी. So that's why the rates are different. And I usually don't use Botox. I use Dysport. Dysport is again another type of Botox, but I really like Dysport myself. So that's why the rates are different. Same goes for the fillers. Fillers यहाँ पे भी जो हो रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो same fillers हैं, but I'm using the original one. They're using Turkish and Chinese. So when people say why are you so expensive, when they ask, this is the reason. This is the reason. आपको obviously एक fake quality मिलती है, एक authentic quality मिलती है, एक original quality. So I'm whatever the products I'm using, all are authentic, 100%. If you wanted to save some money, you're most welcome to go somewhere else. But you are not going to give I don't treatment. compromise from my side. This is the motto of my life, that I don't want to compromise on quality. As I said, I 100% I myself believe in quality. I don't want to work in quantity. I work in quality. Absolutely. So tell me about men. क्या मर्दों को एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है? क्या वो आते हैं आपके पास मेल पेशेंट ज़्यादा? ज़रूरत सबको होती भी है और सबको नहीं भी होती. दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल. समटाइम कोई पेशेंट सफ़र कर रहा होता है किसी कंडीशन में, समटाइम किसी को एस्थेटिकली इम्प्रूव करना होता है. एंड आई एम रियली प्लीज टू से दैट कि पाकिस्तान के अंदर मेल पेशेंट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्लो है. और उनको जब मैं उनके जब कंसर्न्स अंडरस्टैंड करती हूँ, इवन जब वो अपनी स्किन केयर रूटीन बताते हैं, दैट इज़ समथिंग रियली, दिस मेक्स मी रियली impressed and I feel really good because yesterday a patient came to me, along 25 years old boy, along with his mother, and mother was not following any skincare routine. और बेटा फॉलो कर रहा था. पूरी routine. According vitamin C, this, that, and he was familiar with everything, and I was really impressed. And I was like, really. तो यानी Gen Z को information तो है. Yes, and not just that. मिडिल एज मेरे पास इतने सारे मेल पेशेंट्स हैं जो कि बोटॉक्स कराना चाहते हैं, अपनी हेयर ग्रोथ,
जो हेयर पिगमेंटेशन ग्रोथ की तो खैर हाँ लेकिन बहुत पिगमेंटेशन भी ज्यादा समथिंग demand है। स्किन रिजुविनेशन दे आर इनटू They are दैट into it. सो दिस इज समथिंग रियली गुड एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट चेंज इन पाकिस्तान बट सबसे ज्यादा जो कंसर्न मर्दों की होती है वो क्या होती है? हेयर ग्रोथ। hair growth yes growth. this is something they are not happy about it and secondly pigmentation But is that only in Pakistan or world over? What? World over. Worldwide this is something very common because male pattern hair loss बहुत common है क्यों? Because of टेस्टोस्टेरोन की वजह से? Yes. So as your testosterone levels fall, yes आपकी and sometimes आपके genes में run कर रहा होता है and लड़कियों के hormones different होते हैं इसलिए लड़कियों के इतने ज़्यादा hair fall issues नहीं होते comparatively male pattern baldness is very common Okay. So, what do you like to do in your free time? How do you calm yourself down? जो आप कह रही हैं कि stress levels को भी balance करना होता है. What do you do? I like to spend my time with my family or with my friends. I like to go out, spend some time with my husband, watch together, eat out, and this is how I like to do it and watch something nice. Okay, let's quickly talk about essential morning routine and essential evening routine. I know कि हर किसी Yes. की needs different हैं, Yes. like you said. Yes. लेकिन जो basics होनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, स्किन केयर के लिए, वो क्या है? A good face wash, good moisturizer. If you have acne prone skin, oily skin, then you are supposed to use hyaluronic acid in your routine. If you have acne prone skin. Yes, because you do need a moisturizer. You do need something to hydrate your skin. Okay. If you can't use something which is like very hydrating and deep moisturizer, because आप normally जब बहुत ज़्यादा thick moisturizers use करते हो तो उससे भी आपकी acne relapse बिल्कुल करती है. होती तो in order to avoid that, you have to use something that is hyaluronic acid. Hyaluronic acid. And along with that, vitamin C is really good, but some patients are allergic to that. But vitamin C is really good. Depends again, हर patient को किसकी क्या requirement है, but this is something very basic. और वो कैसे पता चलता है कि you're allergic to it? Rash हो जाएगी. रैश हो जाएगा, आपको रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको एलर्जिक पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और Okay. सब चीजें ठीक है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग I know. Sunblock. very important very important and this is something I would like to educate my patients also and everyone around अगर आप रात को लैपटॉप पे स्क्रीन पे काम करते हो अंडर दीज लाइट्स you are supposed to wear sunblock मैं तो रात को नहीं लगाती. you are supposed to wear sunblock because these lights are not good for our skin अगर आप स्विमिंग कर रहे हो आप सनब्लॉक लगाओ बिकॉज सनब्लॉक आपकी प्रोटेक्शन है आपको इसका कोई एडवांटेज नहीं इस तरह से नहीं कि आपने लगाया और आप जवान हो गए बट आपको जवान हो आपको या आपको बूढ़ा होने से वो आपकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा आपको एक प्रोटेक्शन देगा तो गुड सनब्लॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज try to wear tinted one especially if you're suffering from pigmentation. Okay. A good sunblock is important and then followed by रात को after once you turn 25 face wash के बाद आपने pea size retinol आपको use करना चाहिए. Yes. Very important but again you have to go and see your doctor कि आपके लिए कितना potency is good और किस तरह से आपकी स्किन को स्टार्ट करना चाहिए and then again a good moisturizer. अच्छा आप नेचुरल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा बिलीव करती हैं कि मतलब कि जिस तरह होम रेमेडीज या ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हो या यू बिलीव कि नहीं सेफ केमिकल्स ज़रूर यूज़ करने चाहिए? बिल्कुल यूज़ करने चाहिए सेफ केमिकल्स यूज़ करने चाहिए ऑर्गेनिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वालिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि अगर कोई प्रोडक्ट की या फॉर्मुलेशन की वो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो वो आपकी स्किन पे रिएक्शन दे सकती है बजाय आपको बेनिफिट्स देने के कुछ ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जैसे हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं लोकली जो कि चाइना से बनकर आ रहे हैं नहीं कुछ खुद भी बना रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं लेकिन देखिए रिसर्च वर्क होना उन सब चीज़ों में उनके एक अथॉरिटी होनी चाहिए अप्रूवल के लिए कि वो फॉर्मुलेशन क्या अप्रूव्ड है तो वो कैसे पता चले उस पर सील होगी यस राइट इंटरनेशनली तो आपके पास लिखा होता है ना कहाँ से अप्रूव है बिल्कुल जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन पे कहाँ लिखा हुआ है कि वो कहाँ से अप्रूव है ये आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो फॉर्मुलेशन है एटलीस्ट फॉर्मुलेशन वो सेफ है अप्रूव्ड है या नहीं है ठीक है और फिर आप वो चीज़ें जब भी आप यूज़ करते हो तो आपने जैसे मुझसे पूछा कोरियन और दूसरे प्रोडक्ट्स कोरियन अच्छे हैं लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छे हैं जिनके जो किसी चीज़ से सफ़र नहीं कर रहे हैं लेकिन वंस और स्किन केयर रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रोटेक्शन दे सकती है ट्रीट नहीं कर सकती है आपको ट्रीटमेंट सिर्फ वो प्रोडक्ट्स दे सकते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं फॉर एग्जाम्पल ओवर द काउंटर हमारे पास हाइड्रोकिनोन है स्टीरॉइड्स है अनफॉर्चुनेटली जब तक आप यूज़ करते हो आपके रिजल्ट्स अमेजिंग रहते हैं आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है जब आप छोड़ते हो तो वो आपके अपने सही तरीके से एडवर्स इफेक्ट दिखाते हैं अमेजिंग एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर विद माय ऑडियंस योर ऑडियंस राइट नाउ कुछ भी
Just stay away from anything which is not supposed to be done, like hydroquinone or any treatment, just because सब कर रहे हैं. आप अपने आप को educate करने की कोशिश करें, learn करने की कोशिश करें कि क्या चीज़ safe है, क्या चीज़ आपकी स्किन के लिए और आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए सेफ हो सकती है. जस्ट बिकॉज आपको कोई चीज़ दे दी गई है और दूसरे ने की है, वो हर चीज़ आप पे अप्लाई नहीं होती है. हर पेशेंट की हिस्ट्री, बॉडी डिफरेंट होती है. अपने हिसाब से अपने आप को केस हिस्ट्री लेके चलें. सो बेसिकली आप डॉक्टर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें. ऑफ कोर्स आप उसकी रिसर्च खुद भी साथ साथ करें. आप ट्रस्ट अगर देखें, एज ए लेमैन पेशेंट आता ही डॉक्टर के पास इसलिए क्योंकि उसका बिकॉज उसकी नॉलेज नहीं है. बट आप एटलीस्ट ये कर सकते हो कि बिकॉज मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट, ऐसे भी पेशेंट, 2 बहनें थी जिन्होंने ट्रीटमेंट कराई. एक बहन की रिजल्ट्स 90% थे. एक बहन द वन व्हिच वाज शी वाज मोर क्यूरियस एंड मोर समथिंग कि उसके ज़्यादा रिजल्ट एंड शी मैनेज्ड टू अचीव अराउंड 50 to 60% रिजल्ट. बिकॉज उसकी दूसरी बहन के 90 थे तो उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसकी रूटीन फॉलो करना शुरू कर दी. एंड दैट वाज समथिंग, उसकी वो 50-60 भी मैसअप कर दिया, वो चीज़ खराब कर दी. तो उसने अपने लिए नहीं की. शी डिडंट कम टू यू. नहीं, उसी के प्रोडक्ट्स ट्रीटमेंट भी कराई, उसकी भी कराई, बट उनकी बॉडी ने ज़्यादा तरीके से, बिकॉज आप दो बॉडीज अगर आप एक घर में भी साथ रहते हो, आपकी बॉडी की डाइट इनटेक डिफरेंट हो जाती है, आपके एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स डिफरेंट हो जाते हैं, आपके प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं, तो फिर आपके रिजल्ट्स भी डिफरेंट. थैंक यू सो मच डॉक्टर फिजा फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड फॉर शेयरिंग सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग. या एंड आई होप दैट यू नो आप लोगों की स्किन को बेहतर से बेहतर करती रहें, एजुकेट करती रहें, एंड इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग टू यू सून फॉर अ rejuvenating procedure. Enjoy. Thank you. Thank you. खुदा हाफ़िज़.